Good morning, everyone. So, in the last few classes, I was discussing about linear inequalities and the graphical method to solve linear inequations. So, everyone, please check out the PDFs being shared and the last class video I just uploaded in the morning. So, please go through the same if you have missed those classes. From today, I'm going to start with a very important and very interesting topic referred to as permutation and combination. It is equally important in grade 11 as well as in grade 12 also. So we have probability, the concept of probability in 11, the concept of probability in 12th. So therein we are going to make use of this topic of permutation and combination. So be very, very attentive, join class on time, and whenever you feel any doubt, you can always ask. So, before I talk about the exact term permutation and combination, probably I'm going to talk about these terms in the next class. But before that, there is a very important term, some of you might be aware of this, a factorial notation. So, what exactly is a factorial? Consider this, let n be a positive integer, means 1, 2, 3, 4, and so on. Then we say that the continued product of first n natural numbers is called as n factorial. And this is very important, n factorial, or the notation is also this, like this and this. In fact, what happened normally in all the books, you will find this notation only for the n factorial. Generally, you will find this notation only, n factorial. But even in this time, the board examination or 12th class, we had a question jahan ye notation use ki gayi thi. So everyone must be aware of this and this notation as well. Now, there is one thing very important to note. We define 0 factorial as 1. तो अब आप चेक करिए n factorial क्या define करा है. Look at the right side. It is the consecutive product of first n natural numbers. तो रिवर्स में कहूं तो n factorial is 1 into 2 into 3 into 4 into 5 and so on up to n. क्या मतलब, जैसे अगर अब हमने बात करी है अबाउट से 3 फैक्टोरियल, तो उस केस में नोट केयरफुली 3 फैक्टोरियल ये लिखा है, राइट? तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, 3 into 2 into 1 which is 6. सिमिलरली 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 into 3 into 2 into 1 whose values is 24. In fact, you can always observe 4 factorial is 4 into 3 into 2 into 1, और अगर मैं 3 into 2 into 1 को अलग से ऑब्जर्व करूं, it refers to 3 factorial. So 4 factorial can basically be written as 4 into 3 factorial, and when it is generalized, we have this as a standard result. Everyone, please check this out. And factorial क्या हो गया, n into n minus 1 factorial. इसकी एक्सप्लेनेशन अभी यहां देखिए, ये एग्जांपल जो दिखाया है 8 फैक्टोरियल 8 into 7 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल को क्या कह सकता हूं, 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल, और 8 into 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल, and so on. Few standard values are there. 0 factorial is 1. Look at the left hand side. This is a standard rule. You have to learn it. 1 factorial 1. 2 factorial क्या हुआ, 1 into 2 which is 2 only. 3 factorial 1 into 2 into 3. 4 factorial 1 into 2 into 3 into 4, 24 हो गया. ऐसे ही 5 factorial 6 factorial and so on. So at least I recommend and suggest 6 factorial तक आपको values याद होनी चाहिए. तो कम से कम 6 factorial तक आप याद कर लीजिए. So quick question for you, third part. यहां जो दिया है 7 factorial minus 5 factorial. Instead of getting 7 factorial की value,
देखिए हम क्या कर रहे हैं, 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल को लिख दिया 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। बिगर फैक्टोरियल को मैंने लाकर कहां तक, स्मॉलर पे रोक दिया, अप टू 5 फैक्टोरियल लाइक दिस। क्यों? क्योंकि अगली टर्म में 5 फैक्टोरियल इन्वॉल्व हुआ है। अब मैं दोनों में से 5 फैक्टोरियल कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट में बच गया 7 इंटू 6 42 और इधर से -1, तो 41 इंटू, अब 5 फैक्टोरियल तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये याद होनी चाहिए, 120 कर देंगे। इनफैक्ट देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, नेगेटिव नंबर के फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होते हैं, फ्रैक्शन नंबर के फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होते हैं, रिमेंबर दैट। यस, इनफैक्ट इन यूनिवर्सिटी लेवल 12th के बाद हम बात करते हैं फ्रैक्शनल नंबर के फैक्टोरियल्स की। तो हाफ फैक्टोरियल ये कुछ अलग से अलग फंक्शंस आएंगे, एज अ गामा फंक्शंस होते हैं, बट वो जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स वगैरह करते हैं, दे आर गोइंग टू टॉक और स्टडी अबाउट दिस ओनली। तो ये हाफ फैक्टोरियल एक्चुअल में डिफाइंड है, बट अप टू 12th क्लास हम कहते हैं कि इट इज नॉट डिफाइंड, सिंपल। इनफैक्ट देयर आर द डबल फैक्टोरियल्स ऑल्सो, वो फिर हायर लेवल पे स्टडी होता है। तो हमें बेसिक फैक्टोरियल को सिर्फ समझना है। सो चेक करते हैं, एक दो क्वेश्चंस और मैं लेता हूं अब आपके सामने। चेक आउट द फर्स्ट क्वेश्चन, आपको ये वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट, 7 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल क्या हो गया, 7 इंटू 6 इंटू 5 एंड सो ऑन तक 1 तक जाना है, बट लेट मी स्टॉप टिल 5 फैक्टोरियल ओनली। देयर इज अ क्लियर रीजन, नीचे 5 फैक्टोरियल था, 5 फैक्टोरियल कैंसल हो गया एंड योर रिक्वायर्ड आंसर। So I'm looking for the answer for the second part. Anyone? Anyone? What's 66. the answer to the second part? 66. 66 सार्थक इज सही। चलो चेक कर लेते हैं, और भी देखिए जरा सॉल्व करके लॉजिकली। देखो 12 फैक्टोरियल इज 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल तक मैं रुक जाऊंगा, और 10 फैक्टोरियल एज इट इज, और 2 फैक्टोरियल तो 2 के इक्वल ही होता है। बस ये फैक्टोरियल कैंसल हो गए, और ये 12/2 हो गया 6 इंटू 11, your required answer. Yes, perfect. Sarthak, 66. नेक्स्ट चेक करिए, सिंपल क्वेश्चन है। यू आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अगर ये आपको गिवन है। Look carefully, 8 factorial, 9 factorial and 10 factorial given है। बिगेस्ट कौन सा है यहाँ, 10 फैक्टोरियल। तो आप बिगर वन को स्मॉलर में रिड्यूस कर दीजिए। किस तरह से, 8 फैक्टोरियल तो यही रहा, प्लस 9 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, और यहां x अपॉन 10 फैक्टोरियल, और 10 फैक्टोरियल क्या होगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। So what will happen now, 8 factorial, of course this is non-zero value, so it will get cancelled out from the denominator, and I left with 1 plus 1/9 is x by 90. We have a simple linear equation. Got it? Many of you are giving the correct answer. It's 100. Others please try.
So simple linear equation and we have the final answer. One can easily check this out. Is there anyone जिसको नहीं आया फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझ, क्योंकि ये तो बेसिक चीज है, ये नहीं आया आगे नहीं बढ़ पाएंगे. So this is the question for your homework. Very simple, बिल्कुल इसके जैसा ही है जो अभी किया है. Again, concept is clear. So, questions for your homework. So 7.1 अभी मैंने बात नहीं की है, अगर आप ध्यान से देखें वहां पर कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल हम बात करने वाले हैं, वो बाद में मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इसलिए पहले मैंने 7.2 को लिया है. एक फैक्टोरियल का कंसेप्ट आप देख लीजिए. जैसे सेकेंड क्वेश्चन है, is 3 factorial plus 4 factorial is 7 factorial. In general, what they are saying is a factorial plus b factorial is a plus b factorial. So clearly the answer is no. कैसे? आप चेक कर लीजिए LHS क्या हुआ, 3 factorial plus 4 factorial, which is ये तो 3 factorial. अब तो वैल्यूज याद हो गई हैं तो डायरेक्ट लिख दो 6 और 4 फैक्टोरियल 24. और RHS की जब मैं बात करूं 7 फैक्टोरियल, ये तो क्लियरली 7 into 6 into 5 into 4 3 2 1 जा रहा है. दिस कैन नेवर बी इक्वल टू 30. तो आपको कंप्लीट सॉल्व करके लिखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ऑब्वियस है कि ये 30 नहीं है. So hence such type of rule is not true in case of inequalities, sorry factorial terms. Same way ये आपको समझ आ जाएगा, a factorial minus b factorial is not equal to a minus b factorial. तो ये बेसिक रूल हैं. a by b factorial की अगर मैं बात करूं, it is not equal to a factorial by b factorial. मतलब जो नंबर्स में हमारे नॉर्मल रूल चलते थे वो फैक्टोरियल्स में ट्रू नहीं होते हैं. टाइम टू मार्क योर अटेंडेंस एवरीवन. Everyone, quickly mark your attendance. Check out this question. ये अभी वो 7.2 से बात कर रहे हैं, NCERT. You have to evaluate this expression n factorial divided by n minus r factorial. Let me pick second part. N is 9 and r is 5. So n factorial over n minus r factorial का मतलब you just substitute these values and this is n factor 9 factorial हो गया, नीचे आ गया 4 factorial. If you have a good understanding, it's 9 into 8 into 7 into 6 into 5. यहां तक लाकर आप आंसर छोड़ देंगे. रीजन बीइंग, इसके बाद तो देखिए अब हमें पता है कि एक्चुअल में क्या होने वाला है. 4 3 2 1 और नीचे 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1 तक जाना था, तो ये वाला और ये कैंसल होना था. तो विद प्रैक्टिस आपको क्लियर हो जाएगा कि इट इज नथिंग बट यहां तक 5 तक की प्रोडक्ट लेना था. इनफैक्ट दोज हु आर अवेयर ऑफ द बेसिक फर्दर कॉन्सेप्ट, उन्हें पहचान बन गई होगी कि हम बात एक्चुअल में कर रहे हैं NPR की. अब ये परमुटेशन है, क्या होता है, आई विल डिस्कस दैट लेटर ऑन, नो नीड टू वरी. जस्ट दैट एनसीईआरटी में एक पहले दे दिया था इस चीज को. सो विल बी टॉकिंग अबाउट दिस नोटेशन एंड द मीनिंग ऑफ दिस लेटर ऑन.
Yes, question for you, everyone. Find the LCM of 5 factorial, 6 factorial, 7 factorial. आंसर मुझे सिर्फ फैक्टोरियल की टर्म में बताना है. So 7 factorial. ओके गुड. आप चेक करिए एलसीएम जब आपसे पूछा है 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, तो क्लियरली इनमें से एक्चुअल में 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या था? 5 4 3 2 1. ये इसमें 6 एक्स्ट्रा आ जाएगा, बाकी 5 फैक्टोरियल. इसमें 7 इंटू 6 इंटू 5, तो 7 भी आना चाहिए, 6 भी आना चाहिए. तो recall the basic definition of LCM. वो नंबर आपको ढूंढना है जिस नंबर से ये तीनों वैल्यूज डिवाइड हो जाएं. क्लास 5th में पढ़ा हुआ है. Anyway, what is the SCF of these three numbers? Anyone? What is their SCF? Highest common factor. ऐसा नंबर जो इन तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे. गुड निधि, आयुषी और जो भी आंसर अभी आए हैं. राइट, गुड. यस यस देवराज, इट्स 5 फैक्टोरियल. अब ये आंसर क्विक तभी आ सकता है जब आपको एक बेसिक फंडामेंटल आइडिया क्लियर हो गया, मीनिंग समझ आ गया हो आपको फैक्टोरियल का, और प्लस में एलसीएम एचसीएफ पता हो. चेक आउट दिस क्वेश्चन. यहां मैंने क्विक हेल्प के लिए सॉल्व करके रखा हुआ है. एवरीवन चेक दिस आउट. यस, तो चेक करिए n+1 फैक्टोरियल आपको गिवन है 90 इंटू n-1 फैक्टोरियल. यू आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. तो चेक करिए बिगर n+1 फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल में ऑब्वियसली n+1 है. तो n+1 को ये जो स्प्लिट करके दिखाया है ये स्टेप, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि n+1 क्या होगा? n+1, फिर उससे एक कम नंबर हो गया n, फिर उससे एक कम हो गया n-1, और RHS एज इट इज लिख दिया 90 इंटू n-1 फैक्टोरियल. बस अब आपने क्या करा? फैक्टोरियल वाली टर्म कैंसिल कर दिया. यू गेट दिस इक्वेशन, rearrange and simplify, you will get one quadratic equation, splitting the middle term or quadratic formula, whatever way you like, you will get your required answer. और n ऑब्वियसली नेचुरल नंबर है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इसीलिए ये रिजेक्ट हो गया. एंड योर रिक्वायर्ड आंसर इज n इज इक्वल टू 9. देयर इज अ स्मार्ट अप्रोच. ये और में जो कहा है, मतलब मैं इतना आगे ये पढ़ता नहीं, मैं आगे नहीं देखता, मैं सिर्फ क्या देखता, n इंटू n+1 आ चुका था 90. दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स. तो अगर 9 इंटू 10 होता है 90, कंपेयर करो ध्यान से, तो n क्लियरली 9 हो गया. तो विदाउट फ्रेमिंग दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विदाउट सिंप्लीफाइंग, फिर मैं बाद में रिचेक करूं आंसर, आप सिंगल स्टेप में आंसर बिल्कुल दे सकते हैं. इवन दिस शॉर्टकट और स्मार्ट अप्रोच इज अलाउड इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो. ऑब्जेक्टिव में तो ऑब्वियस है आपको ऐसे ही करना है. इवन अगर ये सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन में आपका रहेगा टर्म 2 में, तब आप इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं. Check out another question. I'm waiting for a minute.
बिगर फैक्टोरियल को स्मॉलर में कन्वर्ट करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट हेयर। तो बस n+3 फैक्टोरियल वर्सेस n+1 फैक्टोरियल को मैंने देखा, और देखो यहां मैंने कोई शॉर्टकट दिखा दिया है भाई, n+3 फैक्टोरियल को n+3 इंटू n+2 इंटू n+1 फैक्टोरियल तक स्प्लिट कर दिया, एक कम करते रहा, कहां तक लाया, n+1 फैक्टोरियल के। और उसको बस कैंसिल करने के बाद देखो मुझे ये इक्वेशन मिल रही है, n+2 इंटू n+3 इज 56। अगेन देखो यहां मैंने स्मार्ट अप्रोच लगाई है, इट इज अगेन द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर। और 56 क्या होता है, दो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्यूटिव में, इसको मैं 7 इंटू 8 कह सकता हूं। व्हाट डज दैट मीन, छोटा नंबर 7 हो गया, उसका नेक्स्ट बड़ा नंबर 8 हो गया, तो n+2 7 से सिंपली n आ गया 5, आंसर। अगर मैं ये अप्रोच चलो नहीं सोच पाता, तब क्या करते, आप इस इक्वेशन में ओपन द ब्रैकेट कर देते, n² प्लस 5n प्लस 6 इज 56, देन डेफिनेटली आप रीअरेंज कर देते इसे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दो वैल्यूज आ जाती, एक वैल्यू रिजेक्ट कर देते, और ऑफ कोर्स द आंसर वुड बी द सेम एज 5। तो चॉइस इज यूअर्स, थोड़ा जल्दी करेंगे स्मार्टली आप तो आपका ही बेनिफिट है, टाइम सेव होगा। After the idea of the factorial, now I'm going to introduce the fundamental principle of counting. And this is basically your NCERT exercise 7.1. तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है, वो दो तरह के होंगे, एक होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एक होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। So one need to understand the basic difference between the two. So let's begin with the fundamental principle of multiplication. Simple चीज, पहले लैंग्वेज को, थ्योरी बिल्कुल समझिए। If there are two operations such that one of them can be performed in m ways, and when it has been performed in any of the m ways, second operation can be performed in n ways, then the two operations in succession can be performed in m into n ways. The theory may seem to be quite difficult to understand. एक एग्जांपल देखते हैं, ये देखिए यहां पर, तब शायद बेटर समझ आए कि क्या कहना चाहता है, इसका मीनिंग क्या है। In a class, there are 15 boys and 12 girls. The teacher wants to select one boy and one girl to represent the class for a function. In how many ways can the teacher make the selection? आप लॉजिकली सोचिए, 15 बॉयज हैं, कोई भी एक बॉय चाहिए, तो टीचर के पास 15 वेज हैं सोचने के फॉर सिलेक्शन ऑफ दैट बॉय फॉर द फंक्शन। अब गर्ल्स की बात करते हैं, गर्ल्स के लिए टीचर के पास एनी ऑफ द 12 गर्ल कैन बी चोजन, तो उसके लिए 12 वेज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज अगर आप यहां ध्यान से लॉजिकली सोचेंगे तो दैट वुड बी, यहां पहले के बाद 15 चॉइसेस, दूसरे के पास 12 चॉइसेस, टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस विल बी 15 इंटू 12। परफेक्ट आयुषी, इट्स 180।
एक और एग्जांपल चलिए समझते हैं इस तरह का। मान लीजिए किसी केस में, मैं यहां पर वैसे रैंडम एग्जांपल फ्रेम कर रहा हूं, से देयर इज अ सिचुएशन, देयर इज अ मैन और उसके पास मान लीजिए 3 शर्ट्स हैं, राइट, एंड 2 पैंट्स हैं। अब वो किसी भी कॉम्बिनेशन में, अब वो कैसा भी लगे, उससे हम नहीं मैच कर रहे हैं कि भाई रेड के साथ ब्लैक नहीं पहन सकता या ये, वी आर नॉट गोइंग टू दैट एस्थेटिक सेंस। बेसिक आइडिया 3 शर्ट हैं और 2 पैंट्स हैं, तो मैं अगर शर्ट्स को कह दूं S1, S2 एंड S3, पैंट्स है उसके पास P1 एंड P2, तो हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कैन बी फॉर्म्ड? यस आयुषी, यू हैव द आंसर। तो आप चेक करिए, S1 पहली शर्ट के साथ वो पैंट 1 पहन सकता है या पैंट 2, तो यहां से मुझे 2 केसेस मिल गए। ऐसे ही शर्ट 2 के साथ भी सेम चीज पॉसिबल है, पैंट 1 पहने या पैंट 2 पहने, 2 केसेस। थर्ड शर्ट के साथ भी आप सोच सकते हैं, पैंट 1 या पैंट 2, तो 2 केसेस यहां पॉसिबल। टोटल आप काउंट करिए 6 केसेस आ रहे हैं, और वो 6 केसेस एक्चुअल कहां से आए हैं? लुक एट द न्यूमेरिकल वैल्यूज 3 and 2, simply you did multiply them and you have your required answer. Yes, ठीक है निधि। So I hope this basic fundamental example is clear. अब आते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। एडिशन में क्या है? इफ देयर आर 2 operations such that they can be performed independently in M and N ways respectively, then either of the 2 can be performed in M plus N ways. यहां M plus N ways आ रहा है। पिछले वाले एग्जांपल से ही अगर मैं लिंक करूं यहां, और डिफरेंस को समझें अब जरा लैंग्वेज से, इट इज द लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। अगर आपने इस इंग्लिश को ध्यान से समझ लिया और अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से फ्रेम कर लिया, इट वुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो प्लीज चेक दिस आउट, रीड द क्वेश्चन। Yes, in a class there are 16 boys and 9 girls. ठीक है, 16 boys and 9 girls हैं। अब क्या करेंगे? टीचर wants to select either a boy or a girl as a class representative। अब मॉनिटर बनाना है, तो या बॉय हो मॉनिटर या गर्ल हो, तो कितने वेज पॉसिबल हैं? ऑफ कोर्स, इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन? 25 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो कोई भी एक मॉनिटर बन सकता है। यस निधि एंड आयुषी, आई होप मोर आंसर्स इफ दे कैन बी देयर ऑन द स्क्रीन। चैट बॉक्स में लिखिए, बोल दीजिए। तो 25 आपके पास फिर इस केस में आ जाएंगे। यस, अभी धीरे धीरे डिफरेंस क्लियर होना शुरू हो जाएगा। अब शायद मिक्स प्रॉब्लम मैंने शुरू कर दिए हैं। अब मल्टीप्लाई होना है या ऐड होना है, ये आप सोच के मुझे बताएंगे। चेक दिस आउट। थ्री पर्सन्स हैं, दे एंटर अ रेलवे कैरियज where there are 5 vacant seats. In how many ways they can be seated? कितने वे में वो बैठ सकते हैं, सोचिए। So 15. ओके ठीक है, जतिन, आयुषी, सारिका और देखा मैंने 15, राइट। अब आप सोच के चलिए, यहां पर ये 1 2 3 4 5 सीट्स हैं और 3 पर्सन है, तो आप चेक करिए 3 पर्सन के पास पहला पर्सन अगर यहां बैठ गया या यहां बैठ गया, कहीं भी जा सकता है इस तरह से करते हुए, तो आप वो जो केसेस को सोचेंगे, तो अब आपको लॉजिक लगाना क्लियर हो जाएगा कि इट इज एक्चुअली
5 into 50 3 15 ways are possible. 2 सीट खाली ही रहेंगी ऑफ कोर्स ऐसे में, क्योंकि 3 पर्सन्स को बिठाना है ना, तो 2 सीट तो खाली ही रहेंगी। तो केस क्या हो सकता है, मैं पर्सन्स एज्यूम करता हूं से ABC, मैं कुछ केसेस ही सिर्फ शो करता हूं 1 2 3 ओ सॉरी 5 सीट्स हैं ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। मान लीजिए वेरियस मैंने ये पॉसिबिलिटीज के ऊपर सोचना शुरू किया, तो अब आप सोचिए क्या हो सकता है भाई, ABC यहां बैठ गया, नहीं तो मान लो ABC यहां बैठ गए। इस तरह से जब आप टोटल देख रहे हैं तो दे कैन बी सीटेड। एक्चुअल में जब आप केसेस जब लिखने शुरू करेंगे देन यू विल फाइंड दैट देयर आर एक्चुअली 15 वेज ओनली। अब हम यहां पर जब बात शुरू करेंगे ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से अभी लिंक नहीं करा है मैंने, अभी परमुटेशन वर्ड यूज नहीं करा है, बट धीरे धीरे फिर वो जब चीजें आनी शुरू होंगी देन यू विल रियलाइज कि वो क्या मतलब है। और दिस इज बेसिकली अबाउट काउंटिंग विदाउट काउंटिंग, कि अगर मैं ये सारे केसेस लिखने लग गया इट विल बी डेफिनेटली वेरी वेरी चैलेंजिंग और इम्पॉसिबल टास्क। कोई केस मैं रिपीट कर दूंगा, कोई मिस कर दूंगा लिखना। तो अब हम यहां जो बात कर रहे हैं परमुटेशन जो कॉन्सेप्ट है उसमें काउंटिंग हो रही है, टोटल आंसर मुझे मिलेगा, बट कौन कौन से वेज हैं उनको लिखना वो हमें नहीं करना है। वो एक अंडरस्टैंडिंग में मेरी जा रहा है कि यस इस तरह से केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। यस ये पढ़कर देख लीजिए, आपको अपने आप समझ आ जाएगा ऑन द स्क्रीन। तो आप चेक करिए 3 एंट्रेंस डोर और 2 एग्जिट डोर हैं। एंटर वाले मैंने E1 E2 E3 लिख दिए और एग्जिट वाले चलो F1 F2 कह दिए। तो अब कोई भी पर्सन आया उसके पास क्या क्या चॉइसेस हैं, लॉजिकली सोचिए। E1 से वो एंटर करे और F1 से एग्जिट कर जाए, नहीं तो E1 से एंटर करे बट एग्जिट F2 से कर जाए। यही 2 केसेस पॉसिबल हो सकते हैं प्रोवाइडेड पर्सन ने E1 से एंटर किया था। और क्या हो सकता था, एंटर ही पर्सन E2 से करता, फिर वो एग्जिट F1 या F2 से कर सकता है एंड सो ऑन। सिमिलरली E3 से एंटर करे, F1 F2 से एग्जिट कर जाए, तो टोटल 6 वेज विच इज बेसिकली 3 into 2 डायरेक्ट आंसर है। आपको एग्जाम में ये करके नहीं दिखाने केसेस, आपके लिए रेफरेंस के लिए सिर्फ आंसर से मतलब है। चेक दिस आउट, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। नाउ दिस इज अ कॉमन थिंग जो हम यहां बात करेंगे। एक वर्ड आपको दे दिया रोज, कह रहे हैं उससे 4 लेटर वर्ड बनाने हैं, कोई मीनिंग हो या मीनिंगलेस, which can be formed out of the letter of the word rose where the repetition is not allowed। तो अब आप यहां लॉजिकली सोचिए, आपके पास 4 लेटर हैं ROSE, राइट। तो अगर आपने R वाले केसेस, मैंने यहां सिर्फ कौन से केसेस अभी लिखकर दिखाए हैं, ये जो R से शुरू हो रहे हैं। ऑब्वियसली R के बाद क्या आ सकता है, OSE या OES आ सकता था, नहीं तो R के साथ पहले S आता, तो S के बाद OE आ सकता था या S के बाद EO आ सकता था, या R के बाद पहला लेटर ही E से शुरू होता तो EOS आता या ESO आ जाता। तो
टोटल 6 हैं जो R से शुरू हो रहे हैं। ऑब्वियसली O से शुरू होने वाले भी कॉमन सेंस से 6 होंगे, S वाले भी 6 होंगे, E वाले भी 6 होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस जब आप देखेंगे सो दैट्स 24। तो 24 वर्ड्स आप टोटल लिख सकते हैं इस तरह से। यस, 4 फैक्टोरियल दिव्यांश, ठीक है, बिल्कुल आलोक। तो अभी मैंने उसको फैक्टोरियल या परमुटेशन से लिंक नहीं करा है, बट धीरे धीरे जिनको बेसिक आइडिया पता है, आप लॉजिकली सोचिए ये 4 वर्ड फिल करने हैं। ये मैंने 4 बॉक्स दिखा दिए। फर्स्ट बॉक्स के पास कितनी चॉइसेस हैं, ऐसे सोचना शुरू करेंगे। 4 लेटर है, ROSE, इसके पास 4 चॉइसेस थी। एनी 4 वर्ड कैन बी देयर। अब एक लेटर यूज हो चुका है, अब मेरे पास अगले बॉक्स के पास 3 चॉइस बचेंगी। अब 2 लेटर यूज हो चुके हैं, एक और चॉइस कम हो गई, 3 लेटर यूज हो गए, एक ही बचा। और अब आपको सोचना है कि भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल से ऐड करना है इन सभी वैल्यूज को या मल्टीप्लाई। दैट इज द थिंग यू नीड टू अप्लाई, कि ये एंड का केस है या और का केस है। तो कॉमन सेंस एंड अंडरस्टैंडिंग विल टेल यू, जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई देम, आंसर। और धीरे धीरे हम बात करेंगे, दिस इज रेफर्ड टू एज 4 फैक्टोरियल और दिस इज एक्चुअली 4p4. Now what exactly is this 4p4? That will be introduced in the next class. Any doubt to anyone? Last minute only. No, sir. So here is the question for your homework. ये मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ PDF और रिकॉर्डिंग, followed by this another question for your homework. So basic hint मैंने दिया हुआ है, but I am expecting कि आप इसको अपने आप समझ रहे हैं। Of course अगर रिपीटेशन अलाउड है, वो केस मैंने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है, क्योंकि यहां अभी लिया था रिपीटेशन अलाउड नहीं थी। बट अगर रिपीटेशन अलाउड हो जाए, पहले के पास 4 चॉइस, अगले केस में फिर से सेम लेटर रिपीट हो सकता है, 4 चॉइस, फिर रिपीटेशन, फिर रिपीटेशन। तो आंसर उस केस में 256 हो जाएगा इफ रिपीटेशन ऑफ लेटर इज अलाउड. So these cases will be discussed in the next class. Yes, that will be discussed, Ayushi. वो एंड वाले केसेस अभी मिलेंगे हमें धीरे धीरे. Please mark your attendance, everyone, and then you can leave the class. Yes, Lavanya, Ashita, Anmol Sharma, Misty, Ashish,